एक्चुअल केस में तो आपको पता नहीं रहेगा, तो उसके लिए ही व्यूज तो काम आता है, उसी के लिए तो व्यूज है हमारे। हम्म। तो उसमें वो टाइप जो है वो वैसे लिखा रहता है ना, RPC ऐसे ना उसका। हम्म। चलिए पहले हम आगे करते हैं, ठीक है। फॉरेन की और प्राइमरी की बारे में बात करते हैं पहले। फर्स्ट प्राइमरी की था, प्राइमरी की सबको समझ में आ गया, हम्म। ठीक है। तो छोटा सा एक बार देख लेते हैं प्राइमरी की फ्रॉम आवर टेबल, EMP table. Okay, I have a EMP table which consists of, suppose, three columns. One is EMP number, second is ename, and third is DPT number. Okay, अच्छा। so which of these attributes most probably have the primary key? एम्प्लॉय नंबर। Employee number, because why it has the primary key, why it is having, why you say that this EMP number should have primary key? Because this First must be first generally unique. first point, that for every employee in a who joins in a particular organization, they have some हम्म, EMP number, they have some हम्म, employee number of it. So हम्म, that will be our unique value, and every employee has their own EMP number. हम्म, So every employee has their unique EMP number value. हम्म, And second, there will be no such employee present in the particular organization who has no EMP number. Okay, that means there will be not null. हम्म, There will be no null value in particular any name of the employee who has joined in the particular organization. So yes. if these are the certain scenarios which are approving that this EMP number, for EMP number, then we can give primary key to it. Okay, हम्म, so EMP number will be our primary key, and other attributes which can maybe give uniqueness and not null value to it, that key will be called as our candidate key, हम्म, but comprising EMP number also. And if EMP हम्म, number is taken away from that particular pack of that attributes, then they are called as alternate key, हम्म, because they are remaining attributes which was not included in this table. हम्म, Okay, so primary key is one of our constant, which is very important constant. For a particular one table, we have only one primary key. Okay, हम्म, no such database is present in any of the situation in that database. If suppose you can say that there is no database present in this world which have more than one primary key. Okay, हम्म, means every table has one primary key, not more than that, but foreign key can be more than one. Okay, more than one. so this was our table. Suppose I'm giving it a 1 2 3. Okay, and ename suppose Smith, John, 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 and Ward. Okay, हम्म, and department number suppose 10 20 10. Okay, हम्म, हम्म,
Now, primary key clear. Now coming to foreign key. What I have said about foreign key in the previous class is also known as Reference key. referential integrity constant. What is this referential integrity? Anyone? Hmm. Referential integrity constant. So that means any of the column which is present in the table, that table refers to the other table key. That means here is EMP table. Here department number. This department number is the department table primary key or unique key. That is dash department number is the foreign key of this employee table. That means the Basically, common. basically we have some relationship between the primary key of Hmm. same table or different table. That means suppose in Hmm. a normal example, suppose you purchase a pen from your local area. Okay, Hmm. you purchase a pen from your local area. Suppose it costs around 10 rupees. Okay, Hmm. but if you go to another state or another locality, that same pen's price will get rise to 15 or either 15 or less than 10. Hmm. So that is not integrity. That means integrity means every in every place the value will be same. Okay, Hmm. and referential integrity means that references from one table should be same for another table. That means there will be a relationship which says that this particular person is similar to this data present in another table. That means suppose I'm taking a DEPT table, and DEPT table have suppose three column as well, and it has suppose DPT number same. Okay, then what can I say? D name, Location. location. Demo. Hmm. Okay, Demo. location. Okay, Hmm. location and department number. Let Hmm. department number I have taken. Department name. Uh, yeah, department name. Okay, so these two table are present in Scott user. Everyone knows. Hmm. Suppose 10, 20, 30. Okay, Hmm. location. Suppose America. This is India. This is what can I say? Third location, Australia. Okay, Hmm. and department name. Suppose marketing, Hmm. sales, and security. Okay, Hmm. so these are the following datas. Okay, Hmm. that means differential integrity means if suppose it has a primary key, then maybe it consists of some reference take some table is present here that will take the reference from primary key, or either it could be possible or not. Okay, both scenario can we can take. Okay, that if there is it has primary key, then there is no restriction that it should have any foreign key for that. That means any foreign key has taken references from it. Okay, now suppose I'm taking that in our Scott user, you can see that you have seen that in this there is a foreign key. Okay, that means which takes, sorry, it has a primary key, It's something like primary that. key. Okay, Yes, ma'am. primary key, and it has taken references. From this. Which table? EMP table take reference from DPT table. Okay, and which attribute? DPT number. Okay, Hmm. this one. So it has the foreign key
But in EMP table, there is also a primary key present. You can see here, this EMP number have the primary key for that. Mm, Okay. mhm, So there is one field present in a table which have the capability to for giving the uniqueness and not null value to every tuple. That tuple means rows. Okay. mm, So this is our primary key and this is our foreign key, which is taking references from DEPT table. mm, So the primary key, in which table the primary key exists and taking references from or have been taken by some other table, have taken references from this DEPT table, then I've told you in previous class this will be called as parent table mm. and this will be called as child table. Charitable. Okay. We can also say that uh, this parent table is also known as reference table, Mm, because from here the reference is been taken out, mm, and this table is known as referencing table mm. because it is taking reference from DPT table. Okay, that's why the naming convention is like that. Okay, so now we have certain scenarios. Okay, Mm, first, insertion. We can mm, insert, we can delete, mm, we can update. Now coming to reference table, that means in DEBT. Okay, this table. Okay, now you say that okay, let me ask you a question. Is it possible to insert a data in reference table? If I am giving 40 and giving here Burma and giving the department number, department name management. Okay, then is there any integrity constant error, something like that? If I insert in this DEPT table, I've already shown you that in previous classes. Is there any discrepancy? Is there any error which will throw back to us if we insert any data in the primary key or reference table? क्या हो गया? अगर हम DEPT टेबल में कुछ इंसर्ट करेंगे, कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हैं, हाँ, सपोज 40 DPT नंबर, तो यहाँ पे मेरे को कुछ एरर थ्रो करेगा? हम्म, इतने लोग हैं, यस नो, कुछ तो दो ही तो अपने पास ऑप्शन है, यस और नो. नहीं पेरेंट टेबल, करेगा। पेरेंट टेबल में तो करना नहीं चाहिए, चाइल्ड टेबल में करेगा। अच्छा, तो इंसर्ट यहाँ पे मैंने किया 40 को, तो ये तो हमारा पेरेंट टेबल है, मींस हम्म, फर्स्ट टेबल. ओके, तो फर्स्ट हम्म, टेबल में हम ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ले लेगा अच्छे से. ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम चाइल्ड। नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लासेस में मैंने दिखाया था आप लोगों को कि 40 50 16 मैंने 100 तक लिया था, 100 हम्म, तक डेटा डाला था, लेकिन वो ले रहा था ना, मींस आपको हम्म, अभी बताया कि नॉर्मल स्कॉट से मैं उठा के ले रहा हूँ. तो स्कॉट का डीपीटी मेरा क्या इसमें है, ये इस टेबल से रेफरेंस कौन ले रहा है? ईएमपी टेबल. ओके, हम्म, मींस मेरा पेरेंट टेबल डीपीटी है. ओके, हम्म, तो बताओ आप लोग, यहाँ पे तो कोई अपना एरर नहीं आएगा. अब रेफरेंसिंग नहीं टेबल का बात करें, रेफरेंसिंग टेबल में क्या होगा? अगर यहाँ पे आएगा। सपोज मैंने दे दिया 50 दे दिया, और हम्म, यहाँ पे दे दिया स्कॉट दे दिया, और इसका रोल नंबर 4 दे दिया, हम्म, क्या यहाँ पे एरर थ्रो करेगा? एरर करेगा। हाँ करेगा। क्यों करेगा?
क्योंकि इसका रेफरेंस नहीं है पेरेंट टेबल में। हाँ, बिकॉज 50 नंबर डिपार्टमेंट नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस डीईपीटी टेबल। अगर 50 नंबर डिपार्टमेंट नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये बंदा कैसे आया यहाँ पे 50 डिपार्टमेंट नंबर लेके? ठीक है, तो यहाँ हम्म, प्रॉब्लम होगा, एरर थ्रो करेगा। मींस हम्म, इन रेफरेंस टेबल एंड रेफरेंसिंग टेबल, okay, insertion will be possible, but in referencing table insertion will not happen, okay. हम्म, Now, but यहाँ पे इंसर्ट करने का और एक सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता हम्म, है? सपोज यहाँ 40 है, अब यहाँ पे मैंने 40 दे दिया, हम्म। आप बताओ इंसर्ट लेगा? यहाँ पर हाँ अगर लेना पेरेंट चाहिए। टेबल में 40 है तो वहां पर 40 होगा। हाँ, तो लेगा। यहाँ पे तो मेरे को कुछ एरर शो नहीं करेगा, मतलब ये नहीं करेगा। मे बी इधर एरर आ सकता है और नॉट, हम्म, आइदर यस और नो। ठीक है, यहाँ पे दोनों अपना आंसर है। ठीक है, हम्म, नाउ कमिंग टू डिलीट। अब इस टेबल में सपोज मैंने डिलीट किया किसी को, सपोज 10 को डिलीट किया, हम्म, इसको डिलीट किया। हम्म। ठीक है, तो क्या एरर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। डिलीट हो जाएगा। हाँ। गलत है, आप लोग थोड़ा सोचो। यहाँ पे मेरा ये पेरेंट टेबल है डीईपीटी। ठीक है, 10 डिपार्टमेंट नंबर है अमेरिका में जो मार्केटिंग देख रहा है। ठीक है, अब इसमें कौन से बंदे असाइन है? स्मिथ है, वार्ड है। अब आपने ये चीज हटा ही दिया अपने कंपनी से, ये वाले जो पोस्ट है लोकेशन और डिपार्टमेंट नेम हटा दिया, तो ये दोनों बंदा किस में काम कर रहा है? हम्म, थोड़ा म्यूट कर लिया करो ना। चलो ठीक है, यहाँ कॉमेडी शो चल रहा है लग रहा है। चलो, तो यहाँ बताओ, ये दोनों बंदा तो खाली बैठ गया ना, इस पास कुछ हम्म, काम है, बेकार का सैलरी ले रहा है ये। तो यहाँ पे एरर शो करेगा, बिकॉज यहाँ पे जैसे ही डिलीट किया तो ये जो 10 है और 10 है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मींस मेरे हम्म, डेटा में एरर तो आ ही जाएगा। तो ये क्या बोलेगा? एरर शो करेगा। हम्म, मींस इन रेफरेंस टेबल देयर विल बी सम एरर, ओके। बट इन रेफरेंस टेबल अगर डिलीट किया तो आप बताओ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वी कैन इजीली डिलीट the data from the referencing table because in our parent table there will be no changes, but in our child table we can fire anybody which I have employed in my organization. हम्म, मीन स्मिथ को मैं फायर कर सकता हूँ, किसी को भी मैं फायर कर सकता हूँ। हम्म, ठीक है, जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। बट डिपार्टमेंट को ही मैंने फायर कर दूं, मैं अगर फायर कर दूंगा तो कैसे ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, हम्म, वाइस वर्सा। हम्म, तो ये रेफरेंसिंग में आराम से कर सकते हैं, बट इन रेफरेंस टेबल देयर इज वन मोर केस। फर्स्ट केस वाज नहीं कर सकते हैं, अब हम्म। कर कैसे सकते हैं ये देखो, बताओ। कर कैसे सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ। क्या सर? क्या करना है? हाँ। मींस यहां से डिलीट करें तो एरर तो मेरा शो करेगा। हम्म, हम्म, हाँ। अब दूसरा केस तो हो सकता है ना, एक दो ही केस है अपने पास, एक यस और नो। ठीक हम्म, है, अब यहाँ हम्म, पे एरर शो करेगा यस, अगर मैंने यहां से हम्म, 10 डिलीट किया। अब ऐसा हम्म, कौन सा केस है जिसमें आप को नो मिले, मींस कोई एरर नहीं शो करे और यहाँ पे डिलीट भी हो जाए? अगर पूरा डिपार्टमेंट ही मतलब उड़ा ये देंगे तब। ये क्या कर सकते हैं, अगर इसको डिलीट कर रहे हैं, अगर ये भी डिलीट हो जाए और ये भी डिलीट हो जाए तो मेरा एरर शो करेगा? नहीं। नहीं। नहीं करेगा ना। तो ये मेरे को केस देखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों डिलीट हो जाता है, ये हम्म, डिलीट करने से, तो मेरा एरर तो शो नहीं करेगा, क्योंकि हम्म, ये भी कंसिस्टेंट रहेगा, ये भी कंसिस्टेंट रहेगा, है हम्म, ना। कंसिस्टेंसी इज हम्म, आवर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यस।
तो यहाँ पे आप लोग ने अगर ये पढ़ा होगा पीपीटी, तो हम्म, उसमें कुछ ऑन डिलीट करके होगा, कुछ हम्म, कैस्केड, हम्म, ये होगा कुछ ऑन डिलीट कैस्केड। हम्म, ये करने से अगर यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और ये लिख दूं, तो क्या होगा कि इसके साथ साथ जो भी असाइंड एम्प्लॉय होगा इस डिपार्टमेंट नंबर से लिंक्ड होगा, ठीक है, हम्म, वो भी साथ साथ डिलीट हो जाएंगे। ये हो जाएगा। ठीक है, हम्म, इसमें और एक केस होता है। पहला क्लियर। सेकंड, हम्म, सेम ऑन डिलीट सेटनल है क्या, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, सेटनल या डिफॉल्ट कुछ समथिंग होगा, ठीक है। हम्म, ऑन डिलीट सेटनल है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब डिपार्टमेंट नंबर 10 डिलीट कर दिया, और यहाँ पे हाँ बंदा तो है, बट ये डिपार्टमेंट नंबर में काम कर रहा है, यही तो एरर शो कर रहा था ना। यहाँ से 10 गायब हम्म, कर दिया तो ये भी तो 10 नहीं रहेगा यहाँ। तो हम्म, इस केस में क्या हो सकता है, मैं अगर इसका डिपार्टमेंट नंबर को हटा दूं तो मैं फिर एरर नहीं शो करेगा। हम्म हम्म, तो यहाँ पे ये जो कमांड है ऑन डिलीट सेट नल, इसका क्या ऑपरेशन है, अगर ये मैं लगा देता हूं, ये मैं एग्जीक्यूट करता हूं इसके साथ, तो क्या होगा कि ये जो 10 है, ये 10 को रिप्लेस करके नल। यहाँ पे मेरे को नल कर देगा वैल्यू। ठीक है, हम्म क्लियर। हम्म, तो ये दो केस से हम यस और नो दोनों देख सकते हैं। मींस फॉर for this reference table, we can delete or we cannot delete. Both scenario is possible हम्म, for that. Okay, so हम्म, till now, for insertion reference in reference table, it is possible, there will be no error, but in referencing table it may or may not, and हम्म, in delete scenario in reference table there may or may not, हम्म, but in referencing table there will be no error, so हम्म, it can be possible. Now yes, coming to update. हम्म, Update means what? To modify some value. Okay, हम्म, हम्म, now suppose what will happen in reference table, suppose uh, here I change the data of this 10 to 50. हम्म, What will happen if there will be error or not? It will throw some no, error or not? no, 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 हम्म, it will throw error because okay, now here there is no department number such as 10, but our Smith and Watt was having the department number 10. Okay, okay, before null, what was the value of हम्म, this? okay, 10, हाँ, Leave that null. Null concept is over. Now हम्म, coming to previous value 10, 10 हम्म, and 20 for this, and suppose 40 for this. Okay, हम्म, now if I change the department number of 10 to 50, हम्म, then हम्म, there will be some error because here there is in EMP table there is 10 department number 10, present हम्म, in which हम्म, employee are working, yes, so there will be some error or not. yes, 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 So now coming to referencing table. Okay, हम्म, here what happens if I change this 1, sorry, change this 10. Okay, if I हम्म, change this 10 to 40, is it possible that there will be possible, some error? possible, नो सर, Poss- possible, possible, कैसे नहीं पॉसिबल होगा, यहाँ पॉसिबल तो नहीं है, 40 मैंने किया, बट यहाँ पे मेरी डिपार्टमेंट वैल्यू नंबर 40 है। है इन माई पेरेंट 40 टेबल, है तो, देयर इज 40 प्रेजेंट, तो यहाँ पे मेरे हाँ, को एरर नहीं शो करेगा, बट इफ हाँ, आई मेक इट 80 तब तब करेगा। एरर डिपार्टमेंट शो नंबर, करेगा, मीन्स इन रेफरेंस टेबल देयर विल बी मे और मे नॉट. हम्म, नाउ
In reference table there was uh, what was their scenario for update in reference table? It will show error or not? It will show, Hmm. because here is 50 and here is 10 Hmm. 10. Okay, And it will then, show, but it cannot show, it will may not show the error. How? How? What will be the case if there will be no error from department number if I change that department number to 50 from 10? अगर चाइल्ड Is it टेबल में possible? उस डिपार्टमेंट, हाँ है, अगर चाइल्ड टेबल में उस डिपार्टमेंट नंबर में कोई पर्सन असाइन नहीं है तब एरर शो नहीं करेगा। हम्म, हो सकता है, मे बी। तो इसमें केस क्या होगा? इट मे और मे नॉट, hmm. मीन्स टोटल our case was, if we insert in reference table there will be no error. We have free to insert data in reference table, and we are free to delete the data from referencing table. There will be no such case for error, but for all other scenarios there might be some error or not. Okay, this thing Hmm. will be, this thing are very important. ये इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सब चीज, ठीक है? अगर आप डिलीट कर दिए। अब आप लोग से एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? ड्रॉप टेबल किया, Hmm. ट्रंकेट किया Hmm. और डिलीट किया, क्या डिफरेंस Hmm. है? वो तो मेमोरी वाला डिफरेंस एक है। ओके। हम्म, और हाँ एक्चुअली ड्रॉप टेबल में पूरा टेबल ही ड्रॉप हो जाता है उसमें, और ट्रंकेट में सिर्फ रोज डिलीट होता है उसमें। और और ट्रंकेट में एक साथ पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है हर पूरा रोज। और डिलीट में मैं कंडीशन लगा सकता हूँ किसको डिलीट करना है किसको नहीं करना स्ट्रक्चर डेटा टेबल। अब बताओ ड्रॉप टेबल में क्या होता है? है। ड्रॉप टेबल में पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ डिलीट हो जाता है। ये डिलीट होता है, हम्म। ये हाँ हाँ होता है। ये टेबल भी डिलीट हो हाँ जाता है। ओके। नाउ ट्रंकेट, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है। नेक्स्ट। डेटा डिलीट होता है। टेबल स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है। डेटा डिलीट होता है। टेबल डिलीट नहीं होता है। अच्छा, डिलीट, और डिलीट में स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है। डेटा डिलीट होता है। और टेबल भी नहीं डिलीट होता है। टेबल भी नहीं डिलीट होता है। मींस इसमें क्या है कि डेटा मेरा वन डेटा एक बार में बस डिलीट कर सकता हूँ, हम्म। ठीक है? तो यही डिफरेंस है, हम्म। ठीक है? तो मेरा ये हम्म। कांस्टेंट खत्म हो गया, हम्म। ठीक है? अब कुछ लास्ट कुछ देख ले, ठीक है? हम्म। आपने टेबल क्रिएट करना सीख लिया, हम्म। इंसर्ट करना सीख लिया, ठीक है? उसको डेटा मैनिपुलेट करना सीख लिया, हम्म। ठीक है? और भी क्या सीख लिया? बहुत कुछ सीख लिया मेगा सीख, सब क्वेरी वगैरह इन कांस्टेंट सब कुछ सीख लिया, अब बस उसको अप्लाई करना है। अब हम्म। ये तो हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, हम्म। टेबल इज आवर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। हम्म। सो ऑल डेटाबेस ऑब्जेक्ट रिसाइड्स वेयर? डेटा डिक्शनरी। इन अ यूजर। नहीं सभी सर, या जो भी टेबल, अगर कोई भी पर्टिकुलर टेबल है तो वो हम्म। डेटाबेस ऑब्जेक्ट किसी यूजर में ही होगा ना। यूजर में होगा, हाँ, यस। सपोज एमपी डीबीटी स्कॉट में है, सपोज, क्या वो हम्म। है? है। ठीक है, हम्म। तो हाउ टू क्रिएट यूजर ये अभी देख लेते हैं, हम्म। ठीक है? हम्म।
अब किसी सिस्टम से आप काम कर रहे हो तो यूजर बनाना हो, यूजर कौन बनाएगा? हु विल रूट, क्रिएट यूजर? रूट रूट मीन्स सुपर यूजर, सुपर यूजर। मीन्स वो सिस्टम वो बाहर का हो गया, ओएस लेवल का। ठीक है, मैं सीक्वल में हूं अभी, तो सीक्वल में कौन करता है? सुपर यूजर, दैट इज आवर सिस। ओके, सो sys will create any user. यस। So how it will create from DDL statement? Create, because we are in SQL. Okay, so what will be our command? Create क्रिएट user, यूजर, यूजर then नेम। username. If we keep this, then it will may create, but best पासवर्ड एंड ऑल। is to give the password as well with the username. आइडेंटिफाइड। Okay, then we have to give identified by the password which you want to keep in this, or which you want to save for this particular username. ठीक है, password, then our user will be created. Okay, now we can connect this. Okay, let us see, होगा ना? So तो यूजर क्रिएट करने के लिए यूजर कौन क्रिएट करता है पता है आप लोग को? Who हाँ, creates user? सीज करता है ना सुपर यूजर। We the DBA. अच्छा, ठीक है, वो वाला क्या? वो तो आंसर मिल गया ना। हाँ, तो हम क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करके देखते हैं अभी। बट बाय द हेल्प ऑफ SysDB. ओके, suppose I want to create some user. Suppose I'm creating create user. We create this user with create user command. Okay, so create user, then username. यूजर नेम। Suppose I give username SHA1. Okay, then we have to identify some password for it by डिफाइंड बाय। password. Suppose SHA1, same password, same username. Okay, if I give a semicolon and enter, okay, startup नहीं किया. आइडियल इंस्टेंस।
सेम कमांड मैं हम्म, करता हूँ फिर से, एंटर किया, user is created now. हम्म, If you want to see that particular user is created or not, what we will do, how we will check that there is, user table. huh, User table. user table. We want to see the user. अच्छा. What is the So view? show user. Show user. मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ ये SHA1 क्रिएट हुआ कि नहीं, वो कैसे चेक करूंगा? वो कहीं ना कहीं तो होगा ना सेव, हाँ. तो उसके लिए कुछ व्यूज होता है, क्या होता है? User underscore table. Not table of DBA अंडरस्कोर यूजर. DB underscore user है. अब व्यूज जो भी होते हैं, $V हम्म, होते हैं और DBA होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, आप लोग बताया. हम्म, तो DBA जो अंडरस्कोर करके जो भी व्यूज है वो हम DBA यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना. मैक्सिमम व्यूज विच वी यूज इज DBA अंडरस्कोर व्यूज. ओके, हम्म, सो लेट अस चेक DBA underscore users, DBA underscore users. Okay, हम्म, हम्म, you can see username, user ID, password. We can see the password as well, but it will not show us password, maybe because it for a security purpose. हम्म, So you can see here from selecting select हाँ, username, username, then user ID, user underscore ID. Okay, then password. Okay, and there are many parameters when it is created. You can see that from here. Let us check first. DB underscore users, हम्म, enter. Now you can see here there are so many users present in this database, and our user is here, SHA1. हम्म, Okay, you cannot see the password here. हम्म, Okay, all the password field is blank because for security purpose it does not shows us the password, but it has some password internally. Okay, हम्म, so that is how we check the users present in. Suppose if you want to see the Scott, that is Scott, SHA1, this TKR, SHA, sys, that is our super user, system. These all have, these all are created in this database. So they are shown here in DB underscore users view. This user IDs are auto created. हर एक यूजर नेम का अपना एक आईडी होता है, ठीक है. Okay. हम्म, तो और ये यूनिक है या फिर? यूनिक है, अच्छा. सेम नहीं हो सकता, हम्म, ठीक है. नेक्स्ट क्या करना था मेरे को, कनेक्ट करके देखते हैं, कनेक्ट. हम्म, ठीक है. SHA1, then SHA1, this was our username and password, enter. हम्म, क्या दिख रहा है, what is the error here? you are no longer connected to Oracle. वो एरर नहीं Connection. है, वो वार्निंग है, ऊपर एरर है. हम्म, क्या है, we user don't is have not. create session privilege, means we don't have the permission to connect this, we don't have the हम्म, permission to start this SHA1 session. Okay, हम्म, so we have to give the privilege. Now हम्म, we will come to this privilege part. हम्म, Privilege is subdivided into two parts. One is हम्म, system, other is हम्म, object. Okay, all related to system, means for connecting, for creating, all this type of privilege comes under system privilege. Okay, हम्म, and everything which we want to manipulate or add something, some
any parameters for data, we all keep it in object privilege. We will get to know more detail in debate sessions. Okay, Hmm. so what will be our basic, आप लोग देख लो कि क्या क्या होता है बेसिक में. ठीक है, विच टाइप ऑफ प्रिविलेजेस. क्रिएट सेशन, Hmm. ये आप लोग ने अभी देखा कि वो क्रिएट सेशन का परमिशन नहीं था उसको, तो ये परमिशन मेरे को देना पड़ता है. Hmm. नाउ हु विल गिव दिस प्रिविलेज टू यूजर? बताओ. हम्म. कौन ये प्रिविलेज देता है? हाँ, सिस सिस देता है, बट we used to give this. Okay. So our basic system privilege is create session and create table. Okay, that means we give a create permission to create certain tables in that particular user, and to open a session for a particular user. That means we, for our purpose, we need to create a sessions. So that will create a session if we give this privilege to that particular user. Okay, now object may be of insert. Okay, we have a create table permission, then we have to insert it or not. Okay, we have to insert. For that, any data we have to insert, we need this insert permission. We have alter, we have delete. Okay, we have insert हो गया. और क्या हो सकता है? We have select main. If we don't have select, how we can retrieve the data? We have the update also. Okay, so these are the basic object privileges which we will give. Okay, so अब कैसे देंगे? कौन सीस देता है? ठीक है, पता है ना सीस देता है. तो मेरे को पहले शो यूजर कर लेता हूँ. कौन सी यूजर में है वो देखते हैं. किसी यूजर में नहीं है, कनेक्ट करना है. ठीक है, नाउ sysdba से कनेक्ट कर लेते हैं. कनेक्ट हो गया. शो यूजर करके देख लेते हैं. सिस है. क्लियर. नाउ first of all we need to give create session and create table permission. So we have to use DCL statement. What was our DCL statement? Grant and revoke. Hmm? Grant and revoke. Grant and revoke. So we have to use here grant. Okay, because we are granting permission to certain user. So grant, after that, which permission we want to give to a particular user. Means I need to give a create session permission. Then we have to give grant create session. Okay, now we want to give it to user. Okay, which user? SHA1. Now we have to give to and the username. So grant create session to SHA1. Simple English. Yes. भाई ग्रांट करो क्रिएट सेशन किसको? SHA1 को. एंटर किया. ग्रांट सक्सीड. नाउ आई एम कनेक्टिंग इट. Connected. But we don't have the permission of creating table. Create table T1 roll number 2 insufficient privilege because we don't have create table permission. Now we again have to give the create table permission. Okay, so how to give
object privilege. Now we have to give the object privilege. First of all, system privilege, then object privilege. Okay. So we have to again use this DCL statement, grant, then create table permission to SHA1, grant succeed. Now we can able to we have the permission to create table in SHA1. Now creating table is not very important task. We have the task to insert the data in this table, so we need to give insert privilege also. So let us give insert privilege, means select insert and what, suppose Select. giving insert first. Okay, insert to SHA1, missing a expression. Why it is saying missing expression? Because object privilege, it is an object privilege, insert is an object privilege, insert is an object privilege, then we have to give this permission to objects, that is our database objects. That means we have to give it to table, but we haven't created any table, so it is saying us missing expression. So we have to connect again SHA1, SHA1. Okay, then we have to create some table T1 and roll number 2. Okay, our table is created now. Next again we have to connect it, because we will not be able to insert any data to it, to this table. So now I am giving object privilege to table T1. Okay, that means our database object. So for that we need to give insert privilege, then we have to use DCL command again, grant insert. After that we have to give it to certain table, then we have to use on clause. Okay, on keyword, then the table name T1, then in which user does this T1 resides to SHA1. Okay, means username. Grant insert on table T1 to username SHA1. Okay, now if we have more than one user, if we want to grant permission to more than one user, suppose SHA1, SHA2, SHA3, then we can give it here comma SHA1, SHA2 and so on. Okay, अच्छा, इस टेबल को रिकर्सिव नहीं बना सकते? मतलब उसके अंदर जितना भी हो टेबल बनाएगा, या T1 के अलावा और भी जो बनाएगा वो हो जाएगा ऐसे, या फिर देना पड़ेगा? ये जो T1 मैंने यूज किया यहाँ पर टेबल नेम, ये चीज रिकर्सिव नहीं हो सकता? रिकर्सिव मीन्स आप, मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब मैंने जो इंसर्ट जो प्रिविलेज उसको दे रहा हूँ वो T1 टेबल के लिए पर्टिकुलर दे रहा हूँ ना, तो तो SHA1 में दूसरा भी कोई टेबल है वो उसका प्रिविलेज ऑटोमेटिक ऐसे इंसर्ट का, अगर T2 T3 T4 तो वैसे वैसे करके दिया जा सकता है इसको? हाँ, क्यों नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए मेरे को अलग चीज यूज करना पड़ता है, वो होता है रोल। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बेसिक चीज आप लोग सिर्फ अच्छा देख लो। ठीक है, अच्छा, तो ये क्यों नहीं लिया? इसमें बोला टेबल एंड व्यू डज नॉट टेबल एग्जिस्ट। टेबल क्रिएट हुआ था, ये तो हुआ था। क्रिएट टेबल SHA1, SHA1 फ्रॉम टैब T1 तो है। अच्छा, मेरे को यहाँ पे लग रहा है ये है केस सेंसिटिव। स्मॉल टी और कैपिटल टी में। कैपिटल टी दिए, ये केस सेंसिटिव रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, आपको बोला था डेटा केस सेंसिटिव रहता है। ठीक है, तो आप डेटा को दे रहे हो, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को।
ठीक है, तो इसलिए आप लोग को ये बोला था कि आप बेटर होगा कि आप लोग अपर केस में ही कमांड को लिखो। देखो मैंने इधर लोअर केस में लिखा तो यहाँ पे एरर शो किया, अगर मैं यहाँ पे अपर केस में लिखता तो मेरे को एरर नहीं शो करता, हम्म, है ना। तो सेम यहाँ पे फिर से वही करना होगा। ग्रांट इंसर्ट ऑन, देखो फिर से वही T1 कर रहा, T1, ठीक है, after T1। T1 to SHA1, ओके। हम्म, ये अभी भी नहीं ले रहा है। SHA1 जो है वो उसका तो कुछ नहीं है ना केस का। SHA1 का क्या होगा केस का? अच्छा, एक बार मैं रिवर्स करके देख लेता हूँ। हम्म, क्या प्रॉब्लम है इसको, सपोज कुछ और बना के देखते हैं। केस सेंसिटिव बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ वो स्मॉल में लिख हो सकता है उसमें। ठीक है, क्रिएट टेबल, सपोज एम्प्लॉय दे दिया, हम्म, ठीक है, ई नेम हम्म, कॉमा varchar2 10 sal number 10, टेबल क्रिएट हुआ, SSTV किया, then grant insert on em ले लेना चाहिए था एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय टू, अच्छा चेक कर लेते हैं, SHA1 इसमें आउट, मशीन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, एम्प्लॉय टू SHA1 अपने लगता, मशीन में एक बार करके भी कर दो, कुछ मशीन मशीन में में आप लोग एक प्रॉब्लम। बार मशीन में चेक अपना करके देखो ना, हाँ अगर ऑन है वही तो। हाँ, वही वही देख रहा हूँ, ऑन है ऑन है। और नया यूजर बना के करना पड़ेगा क्या, या फिर स्कॉट में होगा? नहीं हो। स्कॉट को मिला हुआ है पहले से। अच्छा तो नया यूजर बनाना पड़ेगा। हम्म, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, मैं तो लेना चाहिए था इसको। चलो, और अगर ये सब प्रिविलेजेस आपको देखना है, ठीक है, ये अगर मैंने दे हम्म, दिया रहता सेलेक्ट इंसर्ट करके वगैरह दे दिया रहता, तो
अगर किसी टेबल में क्या प्रिविलेज है, ठीक है, अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट प्रिविलेज देखना हो या फिर कोई सिस्टम में जो प्रिविलेज दिए हैं वो प्रिविलेज देखना हो, तो मेरे को व्यू होता है एक, क्या होता है, यूजर अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर ट्रिप्स, ठीक है। ये देखो होता है, एक होता है यूजर अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रिप्स, और एक होता है यूजर अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर प्रिप्स। ये होता है दो व्यूज फॉर चेकिंग द privileges, which privilege which user have which privilege, which table have which privilege, which object type object privilege. We can check it through these two views. Okay, one is for system privilege and second one is for object privilege. Okay, for table. Okay, basically for table, given to a table, that privilege object privilege. अब सेम अगर ये ग्राउंड ग्रांट होता है यहाँ पे, यहाँ पे जैसे मैंने ग्रांट लिखा, एक सेकेंड में यहाँ पे देख लेता हूँ। अगर मेरे को रिवोक करना है, ठीक है, मीन्स अगर मेरे को वो परमिशन हटानी है, ठीक है, कि मैं करना चाहता हूँ कि स्कॉट मेरा कनेक्ट ना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरे डीसीएल स्टेटमेंट यूज करता हूँ, रिवोक। और कमांड क्या होता है, रिवोक सेम जो परमिशन आपने दिया है, क्रिएट सेशन। अब यहाँ पे क्रिएट सेशन, अब यहाँ पे आपको रिवोक करना है, मीन्स आपको हटाना है, तो यहाँ पे आप फ्रॉम कीवर्ड यूज करोगे, फ्रॉम स्कॉट, या फिर मैं यहाँ पे एस एच ए वन देके देखो क्या, एस एच ए वन, देखो रिवोक सक्सीड हो गया। अब यहाँ पे मैं कनेक्ट कनेक्ट करके देखता हूँ एस एच ए वन को, देखो कनेक्ट हुआ, सेम इट लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेज। ओके, अब यहाँ पे मैं फिर से कमांड इसको दे सकता हूँ कनेक्ट करके, फ्रॉम सिस यूजर then grant create session to sha1, ग्रांट सक्सीड हो गया। फिर अब मैं फिर से लॉग इन कर सकता हूँ। क्या हुआ तनु, आप चेक किए हो रहा है? मैं कर रहा हूँ अभी, कनेक्ट करना उसमें। एक रिवोक सबने देख लिया कैसे रिवोक करते हैं? ग्रांट तो हुआ नहीं, रिवोक करना सीख लो पहले। फिर से ट्राई करते हैं। सेशन सेलेक्ट इंसर्ट,
और बाकी सब मशीन ऑन है सबका? शाइनी? नहीं सर, ऑन नहीं है। अच्छा, आप बैठे हुए हो सर। शाश्वतो, आप आए हो? हेलो? लगता है ज्वाइन करके सो गए। और कितना टाइम लगेगा? ये ग्रैंड कनेक्ट सेशन टू ऐसे ही है ना, क्रिएट यूजर सेशन। नेम। क्रिएट सेशन। क्रिएट सेशन या तो ग्रांड सक्सेस दिखा रहा है, मगर फिर जब लॉगिन करने जा रहा हूँ तब बोला आप यू स्क्रीन नो शेयर लॉन्गर करो। कनेक्टेड टू। स्क्रीन शेयर हाँ करो। हाँ हाँ। शेयर मेरा। नहीं हुआ शेयर। अभी हुआ। हाँ, क्या किए? इसमें यहाँ पर जब किए अच्छा, ग्रैंड आप क्रिएट। यूजर यूजर नेम SHA1 तो दो। आप SHA1 को दिया, आप SH1 लिखे हो। ओके। कनेक्ट हो गया ना? हाँ, क्रिएट टेबल T1 नहीं करते हैं। सिर्फ रोल लो, उसके बाद फिर उसको ग्रांड हम्म, करके देखो। तो पहले तो उसको टेबल क्रिएशन का मटेरियल्स देना पड़ेगा, तो ग्रैंड ग्रांड सेलेक्ट, सेलेक्ट। कॉमा इंसर्ट। हेलो? उसके बाद फिर आप क्या करोगे? किसको देना है? SHA1 को देना है कि कौन से टेबल को? T1 को देना है। ऑन T1 देना नहीं हो। नहीं, ऑन। टेबल तो क्रिएट हुआ नहीं ना, पहले क्रिएट का टेबल क्रिएट का देना पड़ेगा। हाँ, तो ऑन T1, ऑन ऑब्जेक्ट देते हैं। ओके ओके ओके, ऑन T1 और टू यूजर देते हैं। टू, यस, SH1। ओके। सेम इशू हो रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। शेयर है स्क्रीन। हम्म। अच्छा, तो मेरे को तो रोल फिर यूज करना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं करके देखता हूँ।
रोल से हो जा रहा। अच्छा, कहाँ पर रोल लगाना पड़ेगा? रोल बताना नहीं चाह रहे थे आप, नॉर्मल एक बार चेक कर लेते हैं हम। आ, एक सेकेंड आप लोग रुक जाओ थोड़ा, मैं देख लूँ उसको। ग्रांट रिवोक तो आप लोग देख लिए ना? हम्म। बस ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। grant insert to SHO। अच्छा। आप प्रेजेंट कर दिए। हम्म मैं स्टॉप कर दिया, आप प्रेजेंट कर दिए। हम्म ठीक है, फिर इसको रखते हैं अभी। इसका कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है? अच्छा अच्छा। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, बट हम लोग ग्रांट ऐसे ही देते हैं, ठीक है? ओके। ग्रांट जो भी आपको प्रिविलेज देना, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, सेलेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, जो भी देना है वो दे के कॉमा कॉमा करके, और फिर मेरे को ऑन ऑन वैल्यू। कीवर्ड यूज करना है। फिर जिस ऑब्जेक्ट टाइप को आपको देना है, मींस जिस डेटाबेस ऑब्जेक्ट को देना है, मींस टेबल को, उस टेबल का नाम दो। फिर टू कीवर्ड यूज करना है और यूजर नेम देना होगा जिस यूजर में वो प्रेजेंट है, वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है? और अगर रिवोक करना है तो सेम ऑन रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, और उसके बाद वहां टू को रिप्लेस करके मेरे को फ्रॉम लिखना होगा, क्योंकि वी आर टेकिंग ऑफ दैट परमिशन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर यूजर, सो वी यूज दिस फ्रॉम कीवर्ड इंस्टेड ऑफ टू। ओके, ये होता है। बाकी और तो सब कुछ हो है नहीं। अगर देख लो आप लोग एक बार रोल्स आपको दिखा देते हैं, ठीक है? अगर वो नहीं ले रहा है तो आप ये कर सकते हो, प्रेजेंट करता हूँ। नॉर्मल रोल यूज